الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ان نکتہ دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، رب تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. انسان کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرت لیکن ابویہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ مجوسی ہوتا ہے. وہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسا ہو جاتا ہے. اب آپ آئیے ذرا دیکھیے، مذہب اسلام جب آیا، مذہب اسلام آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر مکہ اور گرد و نواح کے لوگ عمل پیرا تھے، لیکن جب گمراہیت بڑھی اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا لوگوں نے کہہ دیا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا، معاذ اللہ تین خداؤں کے وہ قائل ہو گئے. گمراہیاں بڑھنے لگی، بت کی پرستش ہونے لگی. عرب کی سرزمین پر عمرو ابن لہی ایران سے بت لایا
اور لانے کے بعد ایجاد کر دیا بت کی پوجا کا، لوگ گمراہ ہونے لگے، ایسے گمراہ ہوئے، ایسے مذہب سے پھرے کہ معاذ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک بت الگ تھا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے معبود کی ایک شناخت رکھے ہوئے تھے، کسی کے بت کا رنگ کالا ہوتا، کسی کا پیلا ہوتا، کسی کا لال ہوتا، ہر قبیلے والوں نے اپنے اپنے خدا کو خاص کر لیا تھا۔ ایسا ماحول عرب کی سرزمین پر بن گیا تھا، ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش ہو رہی تھی۔ بلکہ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن و فکر کی بلندی کا جنازہ نکال چکا تھا، بڑی ترقیاں انسان کر گیا تھا اس وقت بھی، اور آج کی ترقیوں کا تو حال ہی دوسرا ہے، لیکن یہ انسان اپنے معبود کی پہچان میں کس طرح سے دور تھا۔ یہ کبھی مچھر کو معبود مان لیتا، کبھی مکھی کو معبود مان لیتا، کبھی پتھر کو معبود مان لیتا، کبھی درخت کو معبود مان لیتا، کبھی آگ کے شعلوں کو دیکھتا معبود مان لیتا، کبھی دریاؤں کی روانی کو دیکھتا معبود مان لیتا۔ یہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر معاذ اللہ اپنے خدا کو مان اور جان رہا تھا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ آئیے ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، حالات کیسے بگڑ چکے تھے۔ ایک انسان اگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور میں سوچتا تھا کہ آخر میں کس کا مذہب اختیار کروں، نصرانی بن جاؤں تو تین خدا پائے جا رہے ہیں، یہودی بن جاؤں تو حضرت عزیر کو خدا مان رہے ہیں، مجوسی بن جاؤں تو آگ کو معبود مان رہے ہیں، سوچ رہا تھا میں کدھر جاؤں۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی اللہ کے چند بندے ایسے تھے جو خدا کو ایک جان رہے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی پیشانی کو کسی بھی بت کے سامنے نہیں جھکایا تھا اور نہ ان کو خدا تسلیم کیا تھا۔ اس دور کے لوگوں کو موحد کہا جاتا تھا، یعنی ایک خدا کو وہ مانتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور سرکار نے 40 برس کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اب آپ کلمہ روز پڑھتے ہیں، لیکن کلمے پر کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ، آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ معبودان باطل بنے بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ نہ جانے کتنوں کو معبود مان رہے تھے۔ تو کلمے کا یہ جملہ آپ جب ادا کرتے ہیں تو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی زبان سے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ میں آپ نے کتنوں کو انکار کیا آپ کو معلوم ہے؟ 18,000 عالم کا انکار آپ نے کر دیا۔ اے میرے معبود، 18,000 عالم تو نے پیدا کیا ہے اور 18,000 عالم کا میں انکار کر رہا ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، میرے پروردگار معبود تو ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کی جائے گی تو تیری عبادت کی جائے گی۔ مولا ہم تجھ کو معبود مانیں گے، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکی تھی، ان پیشانیوں کے سامنے آپ تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھیے کہ وقار کا کس طرح سے نور پھوٹ رہا تھا اور کس طرح سے نور کی کرنیں چمک رہی تھی۔ آج جب ہماری پیشانیاں دوسروں کے سامنے جھکنے لگی ہیں، جہالت اور بے علمی کے ماحول میں آ کر کے ہم نے اپنی پیشانیوں کو نہ جانے کہاں کہاں جھکا کر کے رکھ دیا ہے، تعجب کا مقام ہوتا ہے۔ جس قوم نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا اور جس قوم نے توحید کے نام پر تلوار اٹھائی تھی اور جس قوم نے توحید کے نام پر سمندروں کو پار کیا تھا، جس قوم نے دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ انسان کی پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک سکتی ہے، لیکن یہ انسان کیسا ہو گیا ہے کہ کبھی پتھر کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کسی قبر کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے،
کبھی کسی درخت کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کہیں جا کر کے پیشانی جھکا دیتا ہے. یہاں قبر کے لفظ سے نہ چاہیے گا، ذہن و فکر میں بات لائیے گا کہ معاذ اللہ سبحانی صاحب دوسروں کی بولی بول رہے ہیں. آپ کے ذہن و فکر کی صفائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پیشانی کس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے، آپ کو بھروسہ کس پر کرنا ہے، آپ کو توکل کس پر کرنا ہے، آپ کو کس سے اپنی فریاد پیش کرنی ہے، اور آپ کو کس کی طرف اپنی لو کو لگانا ہے. آپ ذرا دیکھیے، حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کا میدان ہوگا، اور جب رب تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ پیغمبر، کیا تم نے کہا تھا کہ سارے لوگ عیسیٰ تم کو معبود مان لیں؟ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر پر خوف الہی طاری ہوگا، عرض کریں گے اس خوف میں میرے پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، آج اپنی لو اور رب کی طرف سے ہٹا کر کے آپ نے سب کی طرف لگا لیا ہے، اور جب سب کی طرف لو لگ جاتی ہے تو قوم تباہ و برباد ہوتی ہے. اور جب قوم کی لو رب کی طرف لگی ہوئی تھی تو یہ قوم سمندروں میں چلتی تھی تو آواز آتی تھی، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بھی ادا کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ہم اس طرح سے گزرے تھے. یہ آپ کے لیے کب کہا گیا تھا؟ جب آپ کی پیشانی معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک رہی تھی، جب آپ نے سوچ لیا تھا کہ میرا رب پروردگار ہے، مجھے روزی دینے والا رب ہے، مجھے موت دینے والا رب ہے، مجھے زندگی عطا فرمانے والا رب ہے، میری اچھائیوں اور برائیوں کا مالک رب ہے، ہر آن میری مدد کرنے والا رب ہے. لدا رحم غیرس تو فریاد راس تو یہ آسیاں را خطا بخش. بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر رب تعالیٰ کی مشیت ہو جائے کہ اس بندے کو نہیں بخشنا ہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو بخشوا سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کی خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے؟ اور اگر رب کی مشیت ہو جائے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ میرے بندوں کے ہیں مگر میری مشیت ہے میرا بندہ بخش دیا جائے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے پیارے. اس لیے تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے معبود حقیقی کی طرف نہ لگاؤ. آؤ دیکھو مرد مومن کس انداز سے مومن بنتا ہے اور کس بنیاد پر وہ معبود حقیقی کی طرف اپنی لو کو لگاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. نبی کونین نے لا الہ الا اللہ پر فلاح کی بنیاد رکھی ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے سرخرو ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا ہو جاؤ گے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے فتح و کامرانی تمہارے لیے ہوگی. نبی کونین نے کلمہ پڑھنے پر فلاح و عبودیت کا معاملہ رکھا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو پیارے، یہی لا الہ الا اللہ ہے. آج جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم سمندروں میں چھلانگ لگایا کرتے تھے، جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم دوسروں کے سامنے جاتے تھے تو دوسرا بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. وقت کے حرام خوروں نے کلمے کو بھی میوزیم پر پڑھنا شروع کر دیا ہے، کلمے کو بھی گانا گلوچ بنا لیا ہے. ایسے بدماشوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں. یہ کلمہ وہ کلمہ ہے خدا کی قسم کہ جب مرد مومن اپنی زبان سے کلمہ عرض کرتا ہے لا الہ الا اللہ میرا معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرا عابد ہے. جب بندہ کہتا ہے تو میرا رحمان ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے میرے مولا تو رحیم ہے تو رب کا فرمان ہوتا ہے میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے تو غفار ہے تو رب فرماتا ہے بندے میں نے تجھے بخش دیا. جب رب عرض کرتا ہے مولا تو رزاق ہے تو رب فرماتا ہے میں نے تیری روزی بڑھا دی ہے. جب بندہ عرض کرتا ہے مولا تو ستار ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تیری خطاؤں کو چھپا لیا. جب رب عرض کرتا ہے میرے مالک تو رحیم ہے کریم ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمتیں تیرے لیے ہیں، میرا فضل تیرے لیے ہے، میری عنایتیں تیرے لیے ہیں، میرا کرم تیرے لیے ہے. پر بندے میرا سارا کچھ ہے، کرم تیرے لیے ہے. بندہ تو نے مجھے معبود مان لیا ہے، بندے میں تیری عبادت سے بے نیاز ہوں لیکن تو نے اپنی زبان سے مجھے معبود تو کہہ دیا ہے. اے میرے بندے جا تیرا رحم و کرم میرے لیے ہے. گناہ بیند و پردہ پوشد بہیم، تمہارا پروردگار ایسا ہے جو گناہ دیکھتا ہے مگر اپنے کرم سے اور اپنے علم سے تمہاری خطاؤں کو چھپاتا ہے. ایمان کی بات چلی ہے تو سنا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایمان ہی کا سوال کیا تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے. پہلی حدیث شریف ہے
बुखारी शरीफ में इन्नमल आमालु बिन्नियात, और उसके बाद जब दूसरी हदीस आती है तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिस हदीस को रवायत करने वाले हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम सब आका करीम की बारगाह में हाजिर थे, तब तक एक मर्द सरकार की बारगाह में आया। हम लोगों ने उसको कभी देखा नहीं था, और वो आका की बारगाह में दो जानों बैठ जाते हैं और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, ईमान किसे कहते हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलमे तैयबा का पढ़ना ईमान है। और उसके बाद उन्होंने कई और सवालात किए, और उसके बाद सवालात करने के बाद चले गए। आका इरशाद फरमाते हैं, जानते हो ये कौन थे जो आए थे सवाल कर रहे थे? तो हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन थे? और भी दूसरे सहाबा बैठे हुए हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम थे, जो इंसानी शक्ल में आए थे ताकि तुम्हें तरीका बता दें कि किस तरह से तुम्हें नबी की बारगाह में बैठना चाहिए और कैसे तुम्हें सवाल करना चाहिए। हजरत जिब्रील ने उसमें यह भी पूछा था, या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? तो आका ने इरशाद फरमाया, मल मसूल अनहा बिआलमा मिनस साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तो कयामत की निशानियां आप बताइए। आका इरशाद फरमाते हैं, जब चरवाहे हुकूमत करने लगेंगे, नंगे पैर नंगे बदन वाले महलों में फख्र करने लगेंगे, जब औरतें हुकूमतें करने लगेंगी, ये सारी निशानियां कयामत के करीब होने की होंगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और किसी मौके पर कयामत की निशानियों को बता दिया। अर्ज करने का मतलब यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ईमान का सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, ईमान किसे कहते हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अब एक इंसान जब मुसलमान बनता है और कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लेता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये वो गवाही देता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। लेकिन जो फितरतन इस्लाम में पैदा हुए हैं वो पैदाइशी मुसलमान हैं। जब वो होश हवास संभालते हैं तो अपनी जबान से कलमा पढ़ते हैं। मुसलमान पैदा हुए और जवान हो रहे हैं तो भी मुसलमान हैं, कलमे तैयबा पढ़ रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था सहाबा के मजमा में कि जानते हो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज तो ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम की पहली बुनियाद है। अब आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप इस्लाम के पहली बुनियाद पर गौर फरमाइए। आप दिन और रात में कलमा कितना पढ़ते हैं और कलमा पढ़ करके अपने ईमान की हिफाजत किस अंदाज से करते हैं? कलमा पढ़ने वाले नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। उस वक्त नमाज नहीं फर्ज है, हज नहीं फर्ज है, रोजा नहीं फर्ज है, अभी ज़कात की फर्जियत नहीं आई है, मगर कलमा पढ़ करके वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। उनके लिए सिर्फ कलमा काफी है। वो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। जब नमाज फर्ज हो जाती है, आका इरशाद फरमाते हैं अब नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वो नमाज पढ़ने लगते हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। जब रोजा फर्ज हो जाता है, आका फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज है, वो कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान सुनाया कि अब तुम पर ज़कात फर्ज हो गई है, तो वो कलमा पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया अब तुम पर हज फर्ज है, तो आका का ये फरमाना था अब वही लोग जो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, इन अरकान को अब अदा कर रहे हैं। इस तरह से कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। अभी उनके ताल्लुक से कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन
आइए मैं आपको वो चेहरा दिखाता चलूं कि आज जो लोग अपने कलमा पढ़ने पर दावा करके और कहा करते हैं कि सुभानी साहब आप ही ने अपने बयान में कहा है कि कलमे तैयबा जो पढ़ लेता है वो मोमिन हो जाता है। जी हाँ, मैंने सही दावा किया है, कलमे तैयबा जो पढ़ता है वो मोमिन होता है। लेकिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमा को पढ़ने के लिए शर्त कौन सी रखी गई है? आका इरशाद फरमाते हैं तुम कलमा तो जबान से पढ़ रहे हो, मगर कलमे की तस्दीक तुम्हें दिल से करनी पड़ेगी। तुम जबान से इकरार करो और दिल से उसकी तस्दीक हो जाए, वो कलमा तुम्हारा माना जाएगा। ये नहीं कि तुम जबान से कहते रहो मगर दिल तुम्हारा तस्दीक न करे। अगर दिल तस्दीक नहीं कर रहा है तो ये ज़ाहिरी कलमा तो कहा जाएगा, मगर इस्लामी कलमा इसे नहीं कहा जाएगा कि आपने इस्लाम की हैसियत से कलमा को पढ़ लिया है और आप इस्लाम में दाखिल हो गए। नहीं नहीं प्यारे, आओ मैं आपसे बताता चलो कि अच्छा, जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़हनो फिक्र दे दिया तो सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात रहे हैं। किस मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे हुए हैं, निफाक पैदा हो जाता है लोगों में। इस तरह का निफाक पैदा हुआ कि कुछ लोग कलमा पढ़ करके सामने आते मगर दिल उनका कलमे की गवाही नहीं देता और सरकार के सामने बैठे रहते। जब सरकार की बारगाह से उठते तो उठने के बाद जाते अपने लोगों में, लोग कहते तुम मोहम्मद का कलमा सुनने गए थे और उनका नाम लेने गए थे, तो कहते हम तो यूं ही मजलिस में चले गए थे, हम तो उनको बेवकूफ बना रहे थे। माज़अल्लाह इस तरह के जुमले वो कहा करते और कलमा पढ़ते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी अपने माल की दे दिया करते थे, इस्लामी जंग में भी जाया करते थे, कलमा पढ़ते थे। आइए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर वो हमला भी करते थे। एक मर्तबा नबी कौनैन की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो देखिए फला इब्ने फला आ रहा है। या रसूल अल्लाह, आज मैंने इसको देखा है कि ये काफिरों के साथ आपके ताल्लुक से हंस हंस करके बातें कर रहा था। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया ये सिर्फ जबान से कलमा पढ़ने वाले हैं। हज़रत उमर फारूक आजम तशरीफ फरमा है और तमाम सहाबा हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर एक बात बताओ कि तुमको सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है? वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझको सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब, तुम अपने ईमान के ताल्लुक से बताओ। अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब समझ गए। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी तमाम चीजों से भी ज्यादा या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूं। आका इरशाद फरमाते, उमर इब्ने खत्ताब, अब तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचा है। आका ने उसी मौका पर इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। ए मेरे सहाबा, तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी आल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्ता क़रीब से ज्यादा, जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी कौनैन ने यह किस मौका पर इरशाद फरमाया था और सरकार ने किससे इरशाद फरमाया था? आपको कहना पड़ेगा। जब किताबों का मुताला करोगे, उलमा की सोहबत में बैठोगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि आका ने अपने सहाबियों से इरशाद फरमाया था कि तुम में से मोमिन कोई उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करेगा, सबसे ज्यादा मुझसे लगाव नहीं रखेगा, उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा। माफ करिएगा, उलमा बैठे हुए हैं, बाज लोग अपनी तकरीरों में इस हदीस शरीफ का यह तर्जमा कर दिया करते हैं कि नबी कौनैन ने फरमाया है कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगे। माज़अल्लाह, इसका मतलब वो मोमिन है लेकिन कामिल मोमिन नहीं है। खुदा की कसम, ये तर्जमा नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई मोमिन होगा ही नहीं जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी आल से, अपनी औलाद से, अपनी माँ से, अपने बाप से, सबसे ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे मोमिन नहीं होगा। नबी कौनैन के इस इरशाद पर आप गौर फरमाइए। ये मेरे आका ने उस वक्त इरशाद फरमाया था जब सहाबियों की जमात में कुछ मुनाफिकीन शामिल हो गए थे और मुनाफिकीन बज़ाहिर कलमा पढ़ करके दावा करते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं होते थे। नबी कौनैन ने जब ये इरशाद फरमा दिया तो मुनाफिकों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी।
دی. اب دیکھو محمد کا پروگرام. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی ہم سے زیادہ محبت نہیں کرے گا تب تک مومن نہیں ہوگا. وہ اپنے ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے, اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے, اپنے رشتہ اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے, تب تک وہ مومن نہیں ہوگا. آؤ اس حدیث کو جب آقا کے فرمان کو تمام صحابہ نے سنا تو انہوں نے کیسی محبت کی ہے اپنے آقا سے, اب اس کو ذہن میں رکھو. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تب مومن بنو گے. جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی, پہلی لڑائی اسلام میں لڑی گئی تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. 313 مجاہدین ایک طرف ہیں اور 1000 اسلام کے دشمن ایک طرف ہیں. میدان جنگ میں دونوں اتر جاتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے سرکار یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ کو پکڑا نبی کونین نے, اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا اے عمر ابن خطاب آؤ چلو ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں, میرے آقا میدان میں چل رہے ہیں, اور چلنے کے بعد سرکار نے اپنے عصا سے, آقا کے ہاتھ میں جو عصا تھا, جو لاٹھی تھی سرکار کے دستے پاک میں, میرے آقا ایک دائرہ کھینچتے ہیں. ارشاد فرماتے عمر ابن خطاب جانتے ہو یہ دائرہ میں کیوں کھینچ رہا ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول جانے. آقا ارشاد فرماتے عمر ابن خطاب اسی دائرہ کے اندر کل ابو جہل مارا جائے گا, اسی دائرہ کے اندر کل فلاں ابن فلاں مارا جائے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اے دوستو, آج کس منہ سے تم کہہ دیا کرتے ہو نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم تھی؟ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا. قرآن میں صحیح ہے یہ آیت کریمہ. اس موضوع پر میں تقریر کر کے آپ کے ذہن کو صاف کر دوں گا انشاءاللہ دوسرے دن کے بیان میں. لیکن آج بات آ گئی ہو تو میں عرض کرتا چلو کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہوئے تم کہہ دیتے ہو نبی کونین کو غیب کی باتیں نہیں معلوم تھی؟ خدا کی قسم اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. تم مرد مومن ہونے کا دعویٰ پھر نہ کرو, تم اپنے آپ کو نبی کے دشمنوں میں منافقین میں شامل کر لو, اس لیے کہ مومن نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر تم یہ بتا دو ہمیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں تو زندگی بھر کے لیے تمہارے دروازے پر جھاڑو لگانے کی غلامی لکھوا دوں گا. تم حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے ہو, قرآن کی کوئی آیت تم نہیں پیش کر سکتے ہو کہ کبھی بھی نبی کے دیوانوں نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ آپ کو غیب کی بات کہاں معلوم ہے. حضرت عمر فاروق اعظم سے جب نبی فرما رہے ہیں اے عمر ابن خطاب یہاں کل ابو جہل مارا جائے گا, تو عمر ابن خطاب کہہ دیتے یا رسول اللہ جنگ کل ہوگی, میدان میں تلواریں کل چلیں گی. آج ابھی تو ہم میدان میں اتر رہے ہیں, ہم تو مختصر ہیں کافر زیادہ ہیں, ابو جہل سربراہی کر رہا ہے. یا رسول اللہ کل مارا جائے گا ابو جہل, خبر آپ آج کیسے پہلے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کر رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں وہی ہوگا. یا رسول اللہ ابو جہل کل یہی مارا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کونین نے ابو جہل ہی کا نام کیوں لیا تھا؟ اے عمر ابن خطاب ابو جہل کل یہاں مارا جائے گا. ابو جہل کون ہے ذرا تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں, حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں ابو جہل ہے, سگا ماموں ہے. سگا ماموں کل میدان جنگ میں مارا جائے گا. نبی فرما رہے ہیں اے عمر کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا. حضرت عمر کی پیشانی پر شکن نہیں آتی ہے اور نہ وہ یہ سوچتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا ماموں ہے اسے معاف کر دیا جائے یا اس کے تعلق سے یہ جملہ نہ کہا جائے. نبی نے فرما دیا تھا اے عمر جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ میرے آقا نے تو فرمایا ہے جو اپنے رشتہ اور اقارب سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے گا وہی مومن ہوگا. ابو جہل کل یہاں مارا جائے گا. عمر ابن خطاب نے رشتہ نہیں دیکھا ہے, عمر ابن خطاب نے دیکھا رسول اللہ کا دشمن دیکھا ہے. حضرت عمر نے دیکھا اسلام کے مخالف کو دیکھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا اپنے نبی کے مخالف کو دیکھا ہے. نبی کونین نشاندہی فرما رہے ہیں اے عمر ابن خطاب کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا. یہ کہاں وہی نازل ہوئی تھی کہ کل عمر ابن خطاب یہی ابو جہل مارا جائے گا؟ نہیں بلکہ نبوت کا وہ کرشمہ ہے اور نبوت کی وہ جلوہ گری ہے, نبوت کی وہ طاقت ہے کہ آپ کے محبوب فرما رہے ہیں کل یہی ابو جہل مارا جائے گا. جنگ ہونے والی ہے کل, آج ہی اس کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. مارا جائے گا کل, آج ہی خبر دی جا رہی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنگ ہونے سے پہلے کامیابی کا نتیجہ بتا دے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ میدان میں ٹیم کو اترنے سے پہلے بتا دے فلاں ٹیم جیت جائے گی؟ نہیں. یہ شان اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے, یہ عظمت اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے, یہ وقار اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان پکار اٹھے
تھے. اے نبی کے دیوانوں، تم نبی کے علم غیب پر بحث کر رہے ہو. تم صرف اتنا ہی سوچ لیتے کہ جس نبی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، اس نبی کے لیے رب تعالیٰ اپنی پیدا ہوئی کی ہوئی چیزوں کو کیوں چھپائے گا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی خواب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کرو درود، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کرو درود. نعت و بیانات کے لیے بہترین ویب سائٹ mysunni.com. میں نے جو جملہ عرض کیا تھا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. حضرت عمر فاروق اعظم سب سے زیادہ نبی سے محبت کر رہے ہیں. آؤ اسی جنگ کا نقشہ اور لے لو، وہی میدان بدر ہے. اسی جنگ میں ایک معاملہ اور پیش آیا تھا. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو نبی کونین نے ان کی زندگی میں ارشاد فرمایا تم جنتی ہو. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبیدہ بن جراح ہیں. حضرت عبیدہ کے باپ کا نام جراح نہیں ہے بلکہ حضرت عبیدہ کے دادا کا نام جراح ہے. حضرت عبیدہ کے باپ کا نام عبداللہ ہے. تو ان کو کہا جانا چاہیے تو یہ کہا جانا چاہیے کہ عبیدہ بن عبداللہ بن جراح، لیکن عبداللہ کا نام بیچ میں چھوڑ دیا گیا، باپ کا نام نہیں لیا جاتا، دادا کا نام لیا جا رہا ہے. ذرا تاریخ الٹ کر کے دیکھیے اور اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کیجئے کہ حضرت عبیدہ کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام کیوں چھوڑا گیا اور دادا کے نام کی طرف ان کی نسبت کو کیوں جوڑ دیا گیا. یہی میدان ہے. میدان میں حضرت عبیدہ کے باپ نبی کونین کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں. جب باپ بیٹے کے سامنے ہوا تو حضرت عبیدہ سوچ سکتے تھے یہ میرا باپ ہے، اس کو قتل نہ کروں، میں اپنے رخ کو دوسری طرف گھما دوں، تلوار میرے ہاتھ میں میں دوسرے سمت گھوم جاؤں، لیکن نہیں، انہوں نے رخ نہیں بدلا. جیسے ان کا باپ عبداللہ سامنے آیا، حضرت عبیدہ بن جراح نے تلوار کھینچ کر کے جب مارا ہے اور باپ کی گردن کٹی ہو تو کچھ لوگ پکار اٹھے اے عبیدہ تیرا باپ عبداللہ ہے. تب تک حضرت عبیدہ نے کہا لا بھی عبداللہ، انا عبیدہ بن الجراح، میرا باپ عبداللہ نہیں ہے، میں جراح کا بیٹا ہوں. انہوں نے اپنے دادا کی طرف نسبت کر دی ہے. رسول اللہ کا یہ دیوانہ میدان جنگ میں اپنے باپ کو مارا ہے کہ تم رسول اللہ کے دشمن ہو، ہمارے باپ نہیں ہو، تم رسول کے دشمن ہو، ہمارے رشتہ دار نہیں ہو، تم رسول اللہ کے دشمن ہو، ہمارے باپ نہیں ہو. انہوں نے اپنی نسبت کرنی گوارا نہیں کی ہے. ایمان یہی حصہ ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں. نبی کونین فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. پیارے نماز پڑھ لینی بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، زکات دے دینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے حبیب سے محبت بہت کٹھن کام ہے. نبی کونین سے جو محبت کرے گا، اللہ کے حبیب سے جو محبت کرے گا، خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں جیون بتا لے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا. وہ سمندروں کی لہروں پر تیرتا ہوا چلا جائے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا. نبی کا دیوانہ ہے، نبی کونین کی محبت اس کے دل میں ہے. عشق رسول جس کے دل میں ہو جائے اور جس کا دل عشق رسول سے لبریز ہو جائے، زندگی تو اسی مومن کی ہے، جینے کا حق تو اسی مومن کو ہے، وہی مومن وقار کی زندگی پاتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول کونین کی محبت ایمان کا کس طرح سے حصہ ہے. حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے. نبی کونین کی محبت ہی ایمان ہے، نبی کی چاہت ہی کا نام ایمان ہے، رسول اللہ کی الفت ہی کا نام ایمان ہے. آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے. میں عرض کروں گا آج مرد مومن اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن عورتوں کے نہ جانے کیسی عقل کی کجی کی بنیاد
बुनियाद पर वो आ करके अपने ईमान का कभी कभी सौदा कर दिया करता है। 3 हिस्सा इश्क रसूल का मामला अगर मर्दों के ज़हन फिक्र से खत्म होता है इस दौर में तो औरतों की बुनियाद पर खत्म होता है। मैं औरतों की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये ज़हन देना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं ये रसूलुल्लाह का दुश्मन है तो औरत बोल रही है मेरा भाई है। अगर आप सोच रहे हैं रसूलुल्लाह का दुश्मन है तो वो बोल रही है मेरा खालू है। अगर आप सोच रहे हैं रसूलुल्लाह का दुश्मन है तो वो कह रही है मेरा भाई है। मैं औरतों से कहना चाहता हूँ कि नबी कौनैन की मोहब्बत ने तुम्हें वक़ार दिया है, नबी की मोहब्बत ने तुम्हें जिंदगी दी है, वरना तुम्हारी तारीख पलट करके जब देखी जा रही है तो जानवरों को तो ज्यादा लिहाज में रखा जाता था भारत की सरजमीन पर, मगर औरतों का कोई वक़ार नहीं था। आज भी उदयपुर की सरजमीन पर सती स्थल बना हुआ है जहां इनको भून दिया जाता था आग में। अगर ये शादी कर लेती और पहला शौहर मर जाता तो जिंदगी ताप ताप करके गुजार देती, शादी करने की इजाजत नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस रसूल ने तुम्हें वक़ार की जिंदगी दी है, जिस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कदम के नीचे फरमाया कि तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है, रसूलुल्लाह के नाम पर तो तुम्हें मर मिट जाना चाहिए। नबी के नाम पर तो तुम्हारा दरवाजा रसूल के दुश्मन के लिए बंद होना चाहिए। आओ जरा देखो नबी कौनैन की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये हजरत उम्मे हबीबा कौन है, जरा तारीख का नक्शा अपने सामने रखो। हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी है। ये वो हजरत अबू सुफियान है जो पहले इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम के बड़े कट्टर मुखालिफ थे। हजरत अमीर माविया की बहन है हजरत उम्मे हबीबा, इसीलिए हजरत अमीर माविया को मोमिनों का मामू कहा जाता है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सरकार के निकाह में आई हैं, इनके निकाह में आने की एक पूरी तारीख है। उस तारीख को न बयान करते हुए मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत रसूल कायनात की निकाह में जब आई आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हरम शरा में उम्मुल मोमिनीन जब ये बनी है, मोमिनों की माँ का खिताब जब इन्हें मिला है तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू सुफियान को लोगों ने भेजा सुलह हुदैबिया की मुद्दत को बढ़ाने के लिए। एक सुलह हुई थी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और काफिरों से। मेरे आका मक्का शरीफ तवाफ करने के लिए और उमरा करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मक्का के काफिरों ने रोक दिया था और कहा था हम मोहम्मद को मक्का नहीं आने देंगे, तो उस पर सुलह हो गई थी। सहाबा कह रहे थे या रसूल अल्लाह हम नहीं मानेंगे, हम चलेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नहीं सुलह कर लो, अगर ये कह रहे हैं कि 1 साल तक नहीं आना है तो हम मान ले रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये सुलह हो गई थी। जब साल मुद्दत पूरी हो गई तो मक्का के काफिरों ने कहा अबू सुफियान तुम मदीना चले जाओ और मोहम्मद से सुलह की मुद्दत और बढ़ा लो। इसलिए भेजा मक्का के काफिरों ने हजरत अबू सुफियान को कि अबू सुफियान तुम्हारी लड़की मोहम्मद के निकाह में है, तुम चले जाओ तो तुम मुद्दत सुलह की बढ़ा सकते हो। हजरत अबू सुफियान ने सोचा ठीक है मेरी बेटी है, मोहम्मद के निकाह में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मेरी बच्ची है, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। जब हजरत अबू सुफियान आए मदीना तैयबा में तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर डायरेक्ट गए, इसलिए कि उनकी बेटी सरकार के निकाह में है। अब हजरत उम्मे हबीबा को देखो, किसी ने बता दिया ए उम्मे हबीबा तुम्हारे बाप अबू सुफियान आए हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हैं। हजरत उम्मे हबीबा अपने बाप को देखने लगती हैं। जरा अंदाजा लगाइए एक बेटी अपने बाप को किस अंदाज से देखती है अगर उसका बाप उसके घर जाए। एक बच्ची को अपने बाप से कैसी मोहब्बत होती है, बच्ची वाले ही इसका एहसास कर सकते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, मोमिनों की माँ है। हजरत उम्मे हबीबा सरकार का बिस्तर लगा हुआ था, बाप दाखिल हो गए मकान के अंदर, जैसे हुजरा में गए और बिस्तर पर बैठना चाहते हैं तब तक हजरत उम्मे हबीबा उठ पड़ती हैं। उठने के बाद में बिस्तर को समेट दिया। बाप के सहन पर एक धक्का लगा। बाप ने कहा उम्मे हबीबा तुम मेरी बेटी नहीं हो। बाप मैं आपकी बेटी हूँ। उम्मे हबीबा क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? नहीं आप मेरे बाप हैं। उम्मे हबीबा ये तो बताओ कि फिर क्या ये बिस्तरा मेरे लायक नहीं था या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं था? तो अल्लाह के हबीब की बीवी हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। सरकार से कैसी मोहब्बत है, जरा कुर्बान जाइए। बाप की मोहब्बत को ठोकर मार दिया। आप फरमाती हैं मेरे बाप तो जरूर हो मगर तुम मुशरिक हो, नापाक हो। ये रसूलुल्लाह का पाक बिस्तरा है, इसलिए इस पाक बिस्तरे पर नापाक बाप को नहीं बैठने दूंगी। अल्लाह अकबर, ये ईमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि, तुम में मोमिन नहीं होगा जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ए मुसलमानों, अब थोड़ा सा आपका ज़हन फिक्र मैं इस दौर के हालात में लेकर के जाना चाहता हूँ। ये बताओ कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आप नमाज को छोड़ते हैं, नबी से मोहब्बत है तो गुनाह के करीब
क्यों आप जाते हैं? नबी कौनैन से मोहब्बत है तो दूसरों के हुकूक आप क्यों मारते हैं? नबी से मोहब्बत करने वाला गुनाहों के करीब नहीं जाएगा। गुनाह के करीब आप अपने नफ्स को मोहब्बत में लाते हो तब जाया करते हो। गुनाह छोड़ दो, नबी का दीवाना गुनाह की तरफ नहीं जाता है। नबी का दीवाना फाके पर फाका कर लेगा, फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, बगैर यारो मददगार के खुले आसमान के नीचे वो अपनी जिंदगी बसर कर लेगा, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। वो नबी कौनैन की मोहब्बत को फरोख्त नहीं करेगा, बेचेगा नहीं। साथ में ईमान के माहौल को समझते चलिए। ईमान किसे कहते हैं? ये ईमान का मामला है। बाप को बिस्तर पर बैठने नहीं दिया, ये ईमान का मामला है। मैदान जंग में बाप की गर्दन को मार दिया है, ये ईमान का मामला है। मैदान जंग में कटे हुए मामू की गर्दन हजरत उमर फारूक आजम देख रहे हैं, ये ईमान का मामला है। आओ जरा ईमान का मामला है तो देखते चलो ईमान किसे कहते हैं। मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। अगर अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में खामी आ गई तो फिर ईमान का मामला कहाँ रह गया? आज सिर्फ दावा जबानी जमा खर्च किया जा रहा है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ए अल्लाह हम तेरे हबीब का कलमा पढ़ रहे हैं। मुसलमानों, आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ रहे हो, मगर ईमान की चाशनी जो है, जरा उस चाशनी में आकर के हमें बताओ, ईमान के ताल्लुक से आपने कहां तक गौर व फिक्र किया है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की बुनियाद 5 चीजों पर है। उन 5 चीजों में से पहली चीज के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया, पहली चीज कलमे तैयबा है। कलमे तैयबा पढ़ने की कितनी बरकतें हैं सुन लो। जब मर्द मोमिन एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ता है तो नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं वो किला के अंदर दाखिल हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। नबी कौनैन फरमाते हैं जब आदमी कलमा पढ़ लेता है तो हिफाजत के किला में दाखिल हो जाया करता है। कल यही कलमा पढ़ने वाले हर मोड़ पर कलमा की बरकतों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन आज आप कलमा पढ़ रहे हो, मकान आपके जल रहे हैं। आप कलमा पढ़ रहे हो, दुकानें आपकी फूंकी जा रही हैं। आप कलमा पढ़ रहे हो, रोड पर आपको बेइज्जत किया जा रहा है। आप कलमा पढ़ रहे हो। अभी मैंने कल देखा कि कल के दिन के हालात ऐसे थे कि लोग मायूस थे और जब नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद भरी हुई थी, बाहर लोग खड़े हुए थे। लेकिन आज जब मगरिब के वक्त उसी मस्जिद में निगाह जाती है तो सिर्फ मुश्किल से 3-4 सफ लोग होते हैं। जब मुसीबत देखते हो सर पर मुड़रा रही है तब खुदा को याद करते हो। जब देखते हो कि अब हमें फंसाया जा रहा है तब अपने माबूद को याद करते हो। अगर तुम इसी तरह हरदम याद करते रहो तो मुसीबतों का सामना तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा। मुसीबत पर तुमने रब को याद किया तो क्या तुमने बंदगी का हक अदा किया? प्यारे, मुसीबत पर तो हर कोई किसी को याद कर लिया करता है। अरे अपने रब को हर हर आलम में तू याद रख। जवानी तौबा करदन सुन्नत पैगम्बरी से वक्त पीरी गुर्गे जालिम शबद परहेजगार। जवानी की बहारों में अपने रब को याद करो। जवानी के माहौल में अपने रब का खौफ अपने दिल में रखो। जवानी में जब तुम्हारी जबान पर कलमे तैयबा जारी होगा और नौजवान का आंसू जब मिल्लत के लिए बह जाता है तो फतहो कामरानी उसके कदम का बोसा लेती है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है। इस्लामी तारीख को अपने सामने रखो तो तुम्हें जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने किरदार और अमल को पेश कर देना पड़ेगा। तुम इस्लाम को किरदार से फैलाए हो, तलवार से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम सख्ती से नहीं फैला है, इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैला है। इस्लाम तो अपने अखलाक से और अपनी मोहब्बत से फैलता चला गया है। जब इस्लाम के पाकीज़ा निजाम को और पाकीज़ा माहौल को लोगों ने देखा था तो कहा था ये मजहब सही है, ये बेहतरीन मजहब है, और कलमा पढ़ लिया था। कलमा पढ़ने के बाद जब इश्क रसूल में वो मगन हुए थे उन्होंने कह दिया था कि आला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत तो असल ईमान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमे के ताल्लुक से कि कलमा किला है। जब कोई कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो वो इस्लाम के किले में दाखिल हो जाता है, उसकी मुहाफजत हो जाती है और अब उसकी हिफाजत होती रहती है। कलमा पढ़ने की बरकतें कितनी जाहिर होती है वो भी आपको मैं बताऊं। अगर आप कलमा पढ़ते रहो, कल मैंने अर्ज किया था कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहो तो कितनी बरकतें होंगी। आज अर्ज कर रहा हूं यही कलमा, जिस कलमा को पढ़ करके मुसलमान होते हो, जिस कलमा को पढ़ करके तुम अपने दिल को और अपने दिमाग को ताजा कर लिया करते हो, जिस कलमा को पढ़ने के बाद आप अपने ज़हन फिक्र के नक्शे पर एक अजीब रोशनी मुलाजा करते हो, जिस कलमा को पढ़ने के बाद आप सोचते हो कि यही वो कलमा है जिस कलमा को पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है, और इसी कलमे में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इकरार कर रहे हैं। खुदा की कसम, लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर गौर व फिक्र करता रहे
मर्द मोमिन तो बदमजहब नहीं बन सकता है। मैं उन सहन रखने वालों से सवाल करता हूँ, आज तुम हर मोड़ पर सरकार की जात पर बहस करते रहते हो। ये सुन्नी लोग हैं या रसूल अल्लाह का नारा हरदम मारते हैं, ये सुन्नी लोग हैं उठते बैठते या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये सुन्नी लोग हैं इनका अकीदा है कि रसूलुल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो कलमा पढ़ना या तो छोड़ दे और या तो तुझे मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर है। मैं अर्ज करता हूँ, रसूल को हाजिर होने की कोई बात नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये सारी कायनात तो ऐसे है कि जब मलकल मौत के लिए रब ताला ने सारी कायनात को मिस्ल दस्तरखान के कर दिया है। मलकल मौत जहां से चाहे जिसकी रूह कब्ज कर लिया करें, तो मलकल मौत के लिए जब सारी दुनिया दस्तरखान है तो रसूलुल्लाह के लिए सारी दुनिया क्या कर दी जाएगी। तुम अपनी निगाह उठाते हो तो आसमान तक देख लेते हो, तुम्हारी निगाह जाती है तो तुम्हारे निगाह की ताकत जहां तक होती है तुम देख लिया करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रसूलुल्लाह की निगाह की ताकत तुम पता लगा पाओगे कि नबी कहां तक देख रहे हैं। जब नबी से पूछा गया था कहां तक देख रहे हो, तो नबी फरमाते हैं मैं तुम्हारे आगे भी देख रहा हूं, तुम्हारे पीछे भी देख रहा हूं, तुम्हारे दिल की कैफियत को भी देख रहा हूं, तुम्हारे इरादे को भी देख रहा हूं। तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारा रुकू मुझ पर पोशीदा नहीं है, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझ पर पोशीदा नहीं है, तुम्हारे दिल का इरादा मुझ पर पोशीदा नहीं है। जो नबी इरादा देख रहे हो क्या वो तुम्हारा गुनाह नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं क्या तुम्हारी खता नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं क्या तुम्हारी रफ्तार नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं क्या वो नबी तुम्हारा खाना पीना नहीं देख रहे हैं? जो नबी तुम्हारा इरादा देख रहे हैं वो तुम्हारी खलवत भी देख रहे हैं, तुम्हारी जलवत भी देख रहे हैं, तुम्हारा चलना भी देख रहे हैं, तुम्हारा उठना भी देख रहे हैं, तुम्हारा बैठना भी देख रहे हैं। रब ताला ने अपने महबूब की निगाह से किसी चीज को पोशीदा नहीं रखा है। रब ताला ने अपने महबूब को यह ताकत पावर अता फरमा दिया है। आओ बात चल रही है ईमान की तो देखो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत ही का नाम ईमान है। नबी की मोहब्बत में अगर खामी हो गई तो तू कैसे कलमा पढ़ रहा है? प्यारे जब तू पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ भी कलमा पढ़ रहे हो अल्लाह के रसूल हैं, वहां भी कलमा पढ़ रहे हो अल्लाह के रसूल हैं, अपने घर में भी कलमा पढ़ते हो अल्लाह के रसूल हैं, अपनी मस्जिद में भी कलमा पढ़ते हो अल्लाह के रसूल हैं। जरा सा तर्जुमा आप बदल दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। आपकी जबान पकड़ ली जाएगी, जालिम ये तो क्या कर रहा है, रसूल हैं। नहीं साहब मैं रसूल की रसालत मान रहा हूं मगर अब कहां हैं? अब तो उमर करके मिट्टी में मिल गए हैं, अब तो अपने कब्र अनवर में हैं, अब तो मदीना तैयबा में हैं, अब वो दुनिया में कहां हैं? तो जबान तुम्हारी खींच ली जाएगी, तुमने कलमे का मतलब नहीं समझा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने इतना पावर अता फरमा दिया है। और अब तो पावर पर बहस ही न करो प्यारे, जिस तरह से ये मादियत तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है। आज तुम्हें कह रहे थे कि रसूलुल्लाह मदीने में है और हिंदुस्तान से पुकार रहे हो, तुम्हारी बात वो कैसे सुन रहे हैं? जरा अपने अक्ल से आप काम लो कि एक इंसान जब मशीन ईजाद कर लेता है और सूरज के अक्स से जब वो अपनी आवाज को एक दूसरी जगह पहुंचा लेता है, टेलीफोन यहां कर रहे हो तुम्हारी आवाज अमेरिका में पहुंच रही है, यहां टेलीफोन कर रहे हो तुम्हारी आवाज मक्का शरीफ पहुंच रही है, यहां तुम टेलीफोन कर रहे हो और मदीना तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, और मदीना शरीफ से टेलीफोन कर रहे हो, बंबई में आपकी आवाज पहुंच रही है, मदीना शरीफ से हज करके टेलीफोन कर रहे हो, कापड़िया नगर में तुम्हारी आवाज पहुंच रही है। अरे प्यारे अगर एक आपने टेलीफोन का हाथ में ले लिया और उसमें आप बोल रहे हो नंबर दबा करके, तो आपकी आवाज मदीना से बंबई पहुंच रही है। रब ताला ने सारी कायनात को नबी के सदका में पैदा किया है और सारी कायनात के लिए वो रसूल है, तो क्या नबी तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहे हैं? और वो पुकार दे क्या तो उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है? अरे यार तू ईमान तो तार पर रख रहा है मशीन पर, तेरा ख्याल तो जा रहा है मशीन दुरुस्त कर रही है और नबी के ख्याल पर माद अल्लाह पहरा लगा रहा है, नबी कौनैन की अजमत को खिलवाड़ कर रहा है। तू कहता है नबी कैसे आ सकते हैं मदीना तैयबा में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मादियत जिस तरह से तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है। आज टेलीविजन में आप तस्वीरें देख रहे हो, बोलने वाला दिल्ली में बोल रहा है, फसाद होने वाला अहमदाबाद में फसाद कर रहा है, फसाद की आग भड़क रही है गुजरात में, मगर बंबई के टेलीविजन में कैसे देख रहे हो? मशीन तुम्हें दिखा रही है। इंसान ने मशीन को हाथ लगा दिया तो इंसान सूरज की शुआओं से तुम्हारी तस्वीर को कैच कर लिया है, तुम्हारे माहौल को कैच कर लिया है, तुम्हारे करतूत को कैच करके तुम्हारे मकान में तुम्हें दिखा दिया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जलवानुमाई कहां कहां नहीं है। एक इंसान का अक्स सारी कायनात में पहुंच रहा है और कहते हैं फला बोल रहा है, ये तो मशीन की ताकत है। क्या नबी कौनैन को रब ताला ने इतनी ताकत नहीं अता फरमाई?
फरमाई है कि नबी कौनैन जिधर तवज्जो फरमा दे, और जब तवज्जो फरमा दे तो सरकार का जलवा ही जलवा दिखाई दे, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत हो जाए। प्यारे इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूँ कि मादियत जो जो तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है। तुम कहते थे नबी नहीं सुन सकते हैं, मादियत ने बता दिया कि जब इंसान का हाथ हमारे ऊपर लग जाता है और हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि तुम्हारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, मादियत ने बता दिया कि तुम टेलीविजन में अपने आप को हर जगह देख सकते हो। तो अब यही बात आओ जरा अपने ज़हन फिक्र में रख करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सोचो। वो तो नबी हैं, उनको तो रब ताला ने पावर और ताकत अता फरमा दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब तुमने सारी बातों को तो इकरार कर लिया, जब रसूलुल्लाह हैं, मदीना में हैं रसूलुल्लाह हैं, बंबई में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम माने, मेरे आका की निगाहे करम सब पर पड़ रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुलाहजा कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक जगह आप महदूद नहीं कर सकते कि सिर्फ वो मदीना ही में जाओ तब सुनते हैं, उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती या हमारी आवाज को वो वहां तक नहीं सुन सकते, नहीं नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने वो ताकत और पावर अता फरमा दिया है। महबूब जहां तुम हो वही सुन रहे हैं, जहां तुम हो वही मुलाहजा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसको मैं आपसे अर्ज करता चलूं, अभी मैंने एक जुमला कह दिया था कि कलमे की कसरत किया करो, कलमा पढ़ा करो। जब कलमे की कसरत किया करोगे तो उसका फायदा तुम्हारे लिए दुनिया में भी जाहिर होगा और उसका फायदा तुम्हारे लिए कब्र में जाहिर होगा। एक किताब है जिस किताब का नाम तहजीरुन नास है, ये हमारे घर की किताब नहीं है बल्कि उन्हीं लोगों की किताब है, पढ़े लिखे लोग अगर मौजूद होंगे तो तहजीरुन नास किताब को याद कर लें। तहजीरुन नास एक किताब है, चुनांचे तहजीरुन नास किताब लिखने वाले ने एक वाकया लिखा है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया। ये हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे, ये अल्लाह के एक मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हजरत जुनैद बगदादी हैं। उनकी बारगाह में एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसको कश्फ करामत हासिल थी, यानी वो बच्चा वलायत के दर्जा पर फाइज था और उसे कश्फ हासिल था। वो दूर की चीजों को और जो चीजें कल होने वाली हैं उन चीजों को आज ही वो देख लिया करता था। अल्लाह की अता से वो बच्चा बैठे बैठे हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में रोने लगा। अब हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे से नहीं पूछते हैं कि तू रो क्यों रहा है, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी अपने कश्फ से देखते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ को देख रहा है, इसकी माँ का इसके वतन में इंतकाल हो गया है और इसकी माँ को कब्र में दफन किया गया है और इसकी माँ को कब्र में अजाब हो रहा है। ये बच्चा अपने माँ के अजाब को कब्र में देख करके रोने लगा। हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे से कुछ पूछते नहीं हैं, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी 1000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़े हुए थे और उसका सवाब किसी को बख्शे नहीं थे। उन्होंने अपने दिल में इरादा किया, ए परवरदिगार, जो मैंने 1000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ा है, इलाहुल आलमीन इसका सवाब इस बच्चे की माँ को पहुंचा दे। जैसे हजरत जुनैद बगदादी 1000 कलमा पढ़ने का सवाब उसकी माँ को इसाल करते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत जुनैद बगदादी देख रहे हैं वही बच्चा जो रो रहा था अब हंस रहा है। अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, फिर मैंने तवज्जो की तो मुझे कश्फ से मालूम हुआ कि अब इसकी माँ का अजाब खत्म हो गया है और इसकी माँ का अजाब सवाब में बदल गया है। वो बच्चा अपने माँ के अजाब को देख रहा था तो रो रहा था और जब सवाब को देखा तो हंस रहा था। सवाब अजाब सवाब में बदला कैसे? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, कलमे तैयबा की बरकत है। 1000 कलमे तैयबा पढ़ करके इसाल किया जाए तो अहले सुन्नत जमात का यही अकीदा है कि उसका सवाब रब ताला जिसके नाम इसाल किया जाए पहुंचाता है और रब ताला उसको अता फरमाता है उसका अज्र। अब आप जरा गौर फरमाइए कलमे की कितनी बरकतें हैं और कलमे तैयबा से कितने लोग फायदामंद हुए हैं। कलमे की तारीख और फजीलत उठा करके देखिए तो खोलते हुए तेल में नौजवानों को डाला गया था और वो कलमा पढ़ करके तेल में चले गए थे। उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, कलमा पढ़ करके वो जा रहे थे। कलमे की वो नौयत है प्यारे, कलमे तैयबा पढ़ लेने पर एक बंदे मोमिन की जबान पाक साफ हो जाया करती है। वो क्या सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात आपसे बताता चलो कि हजरत दहिये कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये इस्लाम नहीं लाए थे। हजरत दहिये कल्बी बड़े खूबसूरत सहाबी थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आते थे तो दहिये कल्बी की शक्ल में आया करते थे। हजरत दहिये कल्बी के खानदान के 1200 अफराद उनके खानदान के उनके अंडर में थे। एक रोज सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इब्तिदाई इस्लाम का वक्त था, आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप दहिये कल्बी के लिए दुआ मांग दें तो सरकार वो इस्लाम कबूल कर लें तो उनकी बुनियाद पर उनके खानदान के 1200 अफराद इस्लाम कबूल कर सकते हैं। आका करीम के दस्ते नबूवत उठ गए रब की बारगाह में, आका ने दुआ मांग दी, सहाबा ने आमीन कह दिया। अब दूसरे दिन मेरे आका बैठे हुए
लिए हैं तो लोगों की निगाह देख रही है। वो देखो दहिए कल्बी आ रहे हैं। हज़रत दहिए कल्बी जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो सलाम अर्ज करते हैं। जैसे दहिए कल्बी सरकार की बारगाह में गए तब तक मेरे आका ने अपनी चादर दहिया के लिए बिछा दी और इरशाद फरमाया दहिया इस पर बैठो। हज़रत दहिया उस पर बैठते नहीं है, बल्कि सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों से चादर को उठा लिया और उठाने के बाद उसको चूम लिया और चूमने के बाद आंखों से लगा लिया और लगाने के बाद अपने सर पर रखा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस चादर से आपका हाथ लग गया है, मैं इस पर बैठूंगा नहीं बल्कि इसको मैं अपने सर पर रखूंगा। इसकी हैसियत यह है, मैं आपसे पूछता हूँ, हदीस पढ़ने का बहुत दावा कर रहे हो। हज़रत दहिए कल्बी ने कलमा पढ़ने के बाद चादर को नहीं उठाया था, बल्कि कलमा पढ़ने से पहले पहले चादर को उठा रहे हैं, कलमा पढ़ने से पहले पहले वो चूम रहे हैं और कलमा पढ़ने से पहले पहले वो आंखों से लगा रहे हैं। कलमा पढ़ने से पहले पहले दहिए कल्बी अपने सर पर उस चादर को रख रहे हैं। अगर नबी ये कौनैन मना कर देते दहिया इस चादर को चूमो नहीं, आंखों से लगाओ नहीं, अपने सर पर रखो नहीं, तो क्या दहिए कल्बी ऐसा कर सकते थे? नहीं। लेकिन हज़रत दहिए कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इससे आपके हाथ लग गए हैं। ए आका, इसका एहतराम इस तरह से होना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एहतराम दिया है निस्बत का उनके सामने। अब हज़रत दहिए कल्बी इस्लाम कबूल कर लेते हैं और जब इस्लाम पर कबूल कर लेते हैं हज़रत दहिए कल्बी तो बैठ करके रोने लगते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा दहिया रो क्यों रहे हो? पहले उन्हें रोना चाहिए लेकिन दहिया कलमा पढ़ने के बाद तब रोते हैं। जरा सहाबी का अकीदा मुलाहिजा फरमाइए। उनके ज़हन फिक्र में ये बात आई कि पहले गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लो, जब नबी के हो जाओ तब नबी की बारगाह में फरियाद करो। जब नबी के बनते ही नहीं हो तो नबी की बारगाह में फरियाद तुम्हारी कैसी सुनी जाएगी? पहले तुम नबी के हो तो जाओ, फिर तुम फरियाद करो, देखो आका सुन रहे हैं कि नहीं। खुदा की कसम, नबी के जब हो गए तो जंगलों में फरियाद की है तो उनकी फरियाद सुनी गई है। शेर के सामने उन्होंने फरियाद की है तो शेर भागा है। उन्होंने फरियाद दुश्मनों के नरगे में की है तो मदद उनके लिए हुई है। पहले नबी के हो जाओ और फिर देखो किस तरह से तुम्हारे लिए नबी फरियाद को पहुंचते हैं। अब हज़रत दहिया रोए चले जा रहे हैं, आंसू बहाए चले जा रहे हैं। गोया आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु की जबान में इस तरह से वो अर्ज कर रहे हैं। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि सहाबा का तरीका यही था, जब अपने आका की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी के लिए हाजिर होते तो अपनी जबान से अपने गुनाहों का इकरार करते और अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इन गुनाहों की माफी अब चाहता हूँ। गर्ज है बेहद खुशूर तुम हो गफूर और बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्म खता तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे रोने का एक सबब है। आका फरमाते हैं दहिया रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बताऊं मैं क्या रो रहा हूँ? आका फरमाते हैं दहिया बताओ। सरकार से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सुनिए, कतल तो बेयदी सबरीना मिन बनात, या रसूल अल्लाह मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं मुजरिम हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जरा अपने आका की सीरत पढ़ो और जरा सोचो और सवाल करो अपनी अक्ल से कि नबी कौनैन का कलमा पढ़ने से पहले पहले दहिए कल्बी सरकार की बारगाह में कह देते कि या रसूल अल्लाह मैं 70 लड़कियों का कातिल हूँ, मैंने 70 लड़कियों को कत्ल किया है, पढ़ने आया हूँ, कलमा बताओ मेरा कलमा पढ़ा माना जाएगा कि नहीं, मेरा इस्लाम लाना कबूल होगा कि नहीं। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद दहिए कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने 70 लड़कियों को कत्ल किया है। आज अगर कोई एक आदमी को कत्ल कर दे तो हिस्ट्री सीटर करार दे दिया जाता है, एक आदमी को कत्ल कर दे तो बहुत बड़ा दादा मान लिया जाता है, एक आदमी का कातिल मोहल्ले से गुजरे तो बच्चे देख करके डर जाया करते हैं, अगर 2-3 का मर्डर कर दिया है तो मिनिस्टर बन जाया करता है। आज का ये दस्तूर है। लेकिन 70 लड़कियों का कातिल नबी के सामने बैठा हुआ अपने गुनाह पर आंसू बहा रहा है। 70 लड़कियों का कातिल अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा मुजरिम हूँ, अपने खुदा से आप पूछ लीजिए जो सदा मेरे लिए हो मैं सहने के लिए तैयार हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नबूवत झुक जाती हैं, मेरे आका खामोश हैं। तब तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर आ गए, सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं ए अल्लाह के हबीब, रब ताला आप पर सलाम भेज रहा है। और रब ताला ने इरशाद फरमाया है महबूब अपनी निगाहों को उठाओ, अपने गुलामों की तरफ तवज्जो करो। या रसूल अल्लाह दहिए कल्बी अपने गुनाह की सजा पूछ रहे हैं। या रसूल अल्लाह इनसे फरमा दीजिए कि जैसे इन्होंने पहली बार कलमे तैयबा पढ़ा, अगर इनके 60 साल के कुफ्र के गुनाह होते तो रब ताला माफ फरमा देता। ए
महबूब एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ने की ये बरकत है। तो मेरे आका सहाबा से फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, जब एक मर्तबा कलमे तैयबा सच्चे दिल से पढ़ ले पर रब ताला अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो और माफ फरमा देता है, तो तुम कसरत से कलमे तैयबा पढ़ते रहो तो रब ताला तुम्हें क्यों नहीं बख्शेगा, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। पका साहब ही रसूलुल्लाह। तो अल्लाह के हबीब के सहाबा और सरकार इस पर रो पड़े, आंखों से आंसू बह गए। ये मुसलमान, ये कलमे की बरकत है। जरा देख तो कलमा तुझे कहां कामयाब कर रहा है, कलमा किस किस हैसियत से तुझे कामयाब कर रहा है। लेकिन एक बात और बताता चलूं प्यारे, सच्चे दिल से कलमा पढ़ने का मामला और होता है और यूं ही कलमा पढ़ने का मामला और होता है। यूं ही जिस तरह से कलमा पढ़ा गया है उस पर तो मैं कल गुफ्तगू करूंगा और तारीख उलट करके रख दूंगा। अगर तारीख का हवाला गलत हो तो मैं लंदन का रहने वाला नहीं हूं। आप मुझसे हर हवाला ले सकते हैं और हर तरह से सवाल कायम कर सकते हैं, मैं फुल इजाजत देता हूं मुसलमानों। लेकिन उन लोगों से मैं अर्ज करूंगा कि अपने जहनी इख्तिराई सवालों की बुनियाद पर मुसलमानों का ईमान न बर्बाद करो, मुसलमानों के ईमान का जनाजा न निकालो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके जब एक मर्द मोमिन अपने आप को मोमिन होने की हैसियत से साबित करता है तो उसके कलेजे से पूछो कि उसने नबी का कलमा पढ़ा है, अपने आका को रसूल तस्लीम किया है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हबीब तस्लीम किया है। और जब अल्लाह का हबीब और रसूल तस्लीम कर लिया तो वो नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमानों जरा देखो, यही दहिए कल्बी हैं, इनको इनके गुनाह की माफी का परवाना रसूलुल्लाह की बारगाह से मिल जाता है। रब ताला ने कबूल फरमा लिया, सच्चे दिल से कलमा पढ़े हुए थे। गुनाह कैसे माफ होते हैं जरा देखो। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊपर जबान से कलमा पढ़ते थे, उनकी भी निशानदेही कुरान ने कर दी है। महबूब ये कलमा तो पढ़ रहा है मगर जबान से पढ़ रहा है, इसका दिल आपके जात के ताल्लुक से एतराज ही सोचता रहता है। ये सोचता रहता है नबी को गैब का इल्म है कि नहीं, नबी को दूर से पुकारना जायज है कि नहीं, नबी कुछ दे सकते हैं कि नहीं, नबी की शान क्या है, नबी की ताज़ीम हम किस तरह से करें, नबी को कौन कौन सी बातें मालूम हैं। इन सारी बातों को ये अपने दिल में सोचा करता है। महबूब ये मोमिन नहीं है, महबूब ये तुम्हारा बही खां नहीं है, महबूब ये तुम्हें सच्चे दिल से मानने वाला नहीं है। और रब ताला इनकार फरमा देता है ऐसे लोगों के कलमा पढ़ने को। कुरान में रब बयान फरमाता है मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए, महबूब मोमिन नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब रब फरमाता है कि तुम मोमिन नहीं हो तो लाख मोमिन होने का दावा करे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। रब ने मोमिन का मेयार करार दिया है अपने महबूब की मोहब्बत। रब फरमाता है मैं रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की पैरवी कर ली उसने अल्लाह की पैरवी कर ली, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने ही का नाम ईमान है, रसूल के मानने ही का नाम ईमान है। देखो जानना और होता है और मानना और होता है। सिर्फ तुम जान रहे हो मान नहीं रहे हो, और जो मानता और जानता दोनों तरह से है वही मर्द मोमिन कहलाता है। इसकी बहस मुझे तो नहीं करनी है कि मानना किसे कहते हैं और जानना किसे कहते हैं। जानने का ताल्लुक और होता है प्यारे। अखबार जब छपते हैं तो आप सारी खबरों को जान जाते हैं, लेकिन आप बताइए उन खबरों से आपको मोहब्बत होती है? नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं कि आप उन खबरों को जान भी जाते हैं, उन खबरों को आप मान भी लेते हैं, उन खबरों से आपको मोहब्बत भी हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जानी भी जाती हैं और मानी भी जाती हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जानी जाती हैं मानी नहीं जाती, जो जानी जाती है मगर मोहब्बत नहीं की जाती है, जो जानी जाती है मगर नफरत की जाती है, जो जानी जाती है मगर उनसे लगाव नहीं होता है, जो जानी जाती है मगर उनकी चाहत नहीं होती है। तो जानने का नाम ईमान नहीं है, रसूलुल्लाह के मानने का नाम ईमान है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने मोहब्बत से मान लिया तो आपके पास ईमान है। आओ जरा देखो रब ताला कुरान में बयान फरमाता है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिनीन कामयाब हैं। कामयाबी मोमिनों के लिए है, मोमिनों के लिए पस्ती है ही नहीं, मोमिनों के लिए तनज़्ज़ुई है ही नहीं, मोमिनों के लिए बेहयाई है ही नहीं। खुदा की कसम मर्द मोमिन अपने रब पर भरोसा रखता है और जिसका ईमान नहीं होता वो सब पर भरोसा रखता है। आओ बताओ मर्द मोमिन का हाल क्या होता है। आज हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं और कहते हैं हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। आपका चेहरा साफ है, ईमान बड़ा मजबूत है, बात बुरी ना लगेगी। आप दिन भर गुनाह में रहते हैं, आपका ईमान बड़ा मजबूत है। ईमान और गुनाह का तो रिश्ता हो ही नहीं सकता है। जरा इस रिश्ते पर आप गौर फरमाइए कि गुनाह और ईमान ऐसा रिश्ता, गुनाह और ईमान ऐसा मामला, गुनाह और ईमान ऐसी हरकत, गुनाह और ईमान इस तरह के
करतूत, ऐसा हो ही नहीं सकता है प्यारे। आइए आप जरा मुलाहजा फरमाइए और तारीख की रोशनी में देखते हुए चलिए ईमान की चाशनी क्या होती है। यही बगदाद है। जब हम बगदाद की तारीख पढ़ते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, यही वो बगदाद शरीफ तो है, इराक की सरजमीन का दारुस सल्तनत, जिस बगदाद को हिलाकू खान ने तबाह बर्बाद किया था। जब हिलाकू खान 30,000 फौज लेकर के बगदाद की सरजमीन पर चढ़ा था और सारे लोग परेशान हो गए थे, उनको रोका जा रहा था, गुनाह ना करो, बेहयाइयों की तरफ ना जाओ, इस तरह से मामलात उनके सामने आए थे। जब ये हुआ कि हिलाकू खान अब 30,000 की फौज लेकर के आगे बढ़ रहा है, हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, लोग गए का हुजूर कहाँ, हमारी ताकत फेल हो गई, अब हम काम नहीं कर सकते, कोश हिलाकू खां की फौज आ रही है। कहा ठीक तुम लोग जाओ। सारे लोग चले गए। हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक लकड़ी का कटोरा था, पियाला, उसमें खाते थे, पानी पीते थे। जब हिलाकू खां की फौज बगदाद की तरफ चली तो उन्होंने अपने कटोरे को पलट दिया। कटोरा पलटना था, पूरा बगदाद उसी में छुप गया। लोग तलाश रहे हैं दिन भर बगदाद कहाँ है। जब शाम को वापस गए, हिलाकू खान ने कहा क्या हुआ, कहा हम दिन भर ढूंढते रहे, बगदाद मिला ही नहीं। रब ताला हिफाजत फरमा रहा है। जरा देखो, नेपाल की सरजमीन पर काठमांडू में एक अल्लाह का नेक बंदा मर्दे मोमिन बैठा था। राजा का हाथी उधर आ गया, छोटा सा प्याला इनका था, इन्होंने उसी प्याले के अंदर हाथी को बंद कर दिया। राजा कहने लगा बाबा हमारा हाथी इधर आया था, क्या हुआ, कहा तुम तलाशो तुम्हारा हाथी कहाँ है। कहा अभी अभी यहाँ आया था, पता नहीं क्या हुआ, कहा तलाशो, कहा पता नहीं क्या हुआ, कहा तब, कहा हमारा हाथी मिल जाए तब, कहा तो तुम्हारा हाथी मिल जाए तो क्या करोगे, कहा बाबा आपका चेला बन जाऊंगा। कहा हमारा चेला बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस मजहब पर मैं हूँ क्या वो मजहब तुम्हें अच्छा लगेगा, कहा हमारा हाथी मिला तो दो। प्याला उलट दिया, हाथी फिर निकल आया उसी के अंदर से। कहा कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल करो। कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। हाथी बंद कर ले रहे हैं, पूरा शहर बंद कर ले रहे हैं, और आप कलमा पढ़ करके ना अपना रूम बंद कर पा रहे हैं, न अपनी दुकान बचा पा रहे हैं, न अपनी जान बचा पा रहे हैं। इसलिए प्यारे मर्दे मोमिन बन करके जियो और मर्दे मोमिन बन करके मरो, यही पैगाम करबला है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कद अफ्लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। जो मोमिन हैं वो कामयाब हैं, और जो मोमिन हैं वो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवे मुअरिदून, और बेहुदा बातों से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और ज़कात देने का काम करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़कात देने का काम करे, बुरी बातों से अपने आप को बचे, नमाज में आहोजारी करे, कलमे तैयबा पढ़े, रब ताला फरमाता है कामयाबी उसके लिए है। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। सामीन इकराम, क्या आपने इस तकरीर को पसंद किया? अगर हाँ तो ख्वाजागरीबनवाज.com पर जाएं और फीडबैक में अपने तासुरात या पैगाम जरूर लिखें। अगर वेबसाइट की स्पेलिंग याद ना हो तो mysunni.com पर जाएं, वहां बटन नंबर 3 पर क्लिक करें। इस तरह आप ख्वाजागरीबनवाज.com पर पहुंच जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा नंबर Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. नंबर ये है Share this video please. 915